Hello, viewers. Welcome back to Econ City. Today, we'll be starting with Chapter 1 of Indian Economics, which is Indian Economy on the Eve of Independence. Now, whenever we mention Indian economy, we have to know where it has come from. What we are today has come from a history. So, that history is important to understand how we can make a better future. That is why we are taught with Indian history. So I'll start with, wait, we are studying about on the eve of independence. So 1947, say we'll divide everything. This is the time before 1947 and this is the time after 1947. What does eve mean? Eve means just before. So you can say that for a short time period just before the independence, we'll be talking about that part. We'll be focusing on that. Okay. Now, how, why is this a mark? Like, why are we getting independence? Who were ruling us? Who colonized us? So, the answer is very simple. It is the British. Now, what did British do? They fought a battle of Plassey in 1757. Now, after this, they won the battle and they set their empire in India, and from that, things unfolded and they started to rule us. Now, if we have to ask ourselves that what was the basic purpose जिसके लिए they came and they settled and they ruled India for so many years, the main purpose was they wanted to use Indian economy as feeder economy for the development of British economy. Now they wanted to use Indian economy. They wanted to take things that are available, transport it to Britain, and develop their economy. They wanted that from India. And that is why they ruled us for 200 years and they continuously carried out this process of taking things from India and exporting it to this Britain and developing their economy. They were using our economy as a path or as a feeder economy. Okay, so resources were exploited. Our resources were exploited for almost 200 years. So you see how important it is for us to know that where we come from. Okay, that is why this chapter is important. Now we will try to understand how our economy was. So, our economy under the colonial rule, since we see that their objective was not to develop India in any matter, they just wanted to use it as a feeder economy and feed their own country, their own economy. So, colonial time pe it had low level of economic development. Okay, so before British came in India, our economy was independent, it was self-reliant, it had everything. We were known as golden bird, मतलब सोने की चिड़िया. So from सोने की चिड़िया, they extracted, exploited as much as possible. जो हमारा उस टाइम पे एग्रेरियन सेक्टर था, which is also known as agriculture sector, वो मेन सोर्स ऑफ लिविंग था लोगों का. मेन सोर्स ऑफ लिविंग. उस पे two-third of the population was dependent on agriculture for their basic livelihood. So you see ki how important was agriculture to us, how important was agrarian economy. And also India was known for its handicraft industries. We were very good with handicrafts. So India was known for its cotton, silk, metal, precious stones, etc. So हमारे जो products थे they were worldwide famous because it had a reputation of fine quality.
कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका मटेरियल बहुत अच्छा यूज होता है। एंड जो क्राफ्टमैनशिप होती है, जो लोग बनाते हैं, द नंबर ऑफ डेज दे स्पेंड इन मेकिंग अ यूनिक आर्टिकल, दैट वाज हाईली वैल्यूड. So they had high standards of craftsmanship. Okay. Now, when British came, so this is before British came, the golden era agriculture and handicraft industries. But once British entered our economy, the first thing they did was that they used a twofold strategy, because of which there was a decline of handicraft industry, and we became exporter of finished goods from Britain. So, what was the twofold strategy? Even though we'll be covering that in very much detail, I'll explain it to you. Firstly, they deindustrialized. Deindustrialize मतलब इंडस्ट्री का रोल कम करना या खत्म करना. सो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी उनको हटा के व्हाट दे डिड वाज कि जो हमारा रॉ मटेरियल था दे एक्सपोर्टेड दैट टू ब्रिटेन. और ब्रिटेन से फिर ब्रिटेन में दे मेड वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. आई मीन दे मेड इट फॉर चीप, बट दे कॉस्टेड मोर टू इंडियंस एज दे एक्सपोर्टेड इट बैक टू इंडिया. तो इंडियंस वर फोर्स टू बाय दिस क्योंकि उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था. सो वी हैड टू बाय ब्रिटिश प्रोडक्ट्स क्योंकि उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था कि अब हम इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे. क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं और हमारा वो इंडस्ट्री ही डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया उन्होंने. मतलब उसमें अब लाइक लोग बना ही नहीं पा रहे, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे विद ऑल द प्रोडक्ट्स दैट इज कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन. क्योंकि वो क्या है, एक मशीन से बना हुआ प्रोडक्ट है जो ऑब्वियसली बेटर होगा एक हैंडमेड प्रोडक्ट से एंड चीपर भी होगा. सो व्हाट पीपल डू इज कि दे गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स. तो उसी वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो डिक्लाइन होने लग गया क्योंकि लोग फिर देख रहे थे कि अच्छा ये मान लो एक एग्जांपल है कि हैंड जो हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट है वो आ रहा है तुम्हारा 500 रुपीज का, एंड जो ब्रिटेन से एक्सपोर्ट हो रहा है दैट इज ऑफ रुपीज 100. सो दे गो फॉर दिस. तो इस वजह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. एंड उसके बाद जब पैसा नहीं मिल रहा इनको तो मतलब जो इंडियन क्राफ्टमैन है तो दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू मेक मोर प्रोडक्ट्स एंड धीरे धीरे करके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड. सारी जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गए. तो इंडिया लास्ट में क्या बन गया, एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स. मतलब हम कॉटन भेज रहे थे बाहर, जो हमारा कॉटन क्रॉप होता है ग्रो होने के बाद वो हम बाहर भेज रहे हैं. हमारे पास कॉटन टी शर्ट्स आ रही है एंड वी हैव टू कंज्यूम दैट टी शर्ट. नाउ रॉ मटेरियल क्या है, लाइक मान लो 20 रुपीज पर केजी आपने कॉटन सेल कर दिया और जो बाहर से आ रहा है वो 200 का एक टी शर्ट आ रहा है या 500 का एक टी शर्ट आ रहा है. सो यू सी कि हमारे साथ कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ था. जस्ट हम 20 का सामान लेके हमें 500 200 का इंपोर्ट करना पड़ा था. तो हमारी इकोनॉमी कितनी खराब सिचुएशन में थी उस टाइम पे. एंड सिंस वी वर अंडर कंट्रोल, हम रूल के अंदर थे, तो वी कुडंट अपोज इट. उस टाइम समझ भी नहीं आ रहा था व्हेन इट वाज हैपनिंग बिकॉज इट वाज समथिंग वेरी न्यू. लाइक पीपल वर अंडरस्टैंडिंग बट दे डिड नॉट नो हाउ टू retaliate against this. So we see कि low level of national income and per capita income.
नाउ किसी भी इकोनॉमी की कंडीशन हम कैसे जज करते हैं? उसका जीडीपी देख के, उसका पर कैपिटा इनकम देख के। तो हमने उस टाइम का भी देखा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो कोई इंडिया से मतलब था नहीं एज सच, तो डिड नॉट एस्टिमेट इंडियाज national or per capita income. There was no sincere attempt to that. But there were some individuals, and remember their name. Dada Bhai Naroji, William Digby, Finlay Shreyas, V.K.R.V. Rao, and R.C. Desai. So all these people, all of them, they try to see what was our national or India's national income or per capita income, and what they found was कि जो results थे वो बहुत inconsistent थे, बहुत conflicting थे, and अगर हमें सबसे significant देखना हो कि सबसे significant contribution किसका था to estimating national and per capita income. So it was Dr. Rao or V.K.R.V. Rao. Also इनका जो वो था कंक्लूजन था जो स्टडी रिवील कर रही थी, इट सेड कि जो कंट्री का ग्रोथ था ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, इट वाज लेस देन 2%, एंड जो ग्रोथ था ऑफ पर कैपिटा आउटपुट per year, that was only 0.5. 0.5% का ग्रोथ, कैन यू इमेजिन कि किस हाल में थी उस टाइम पे इकोनॉमी? नाउ विल बी स्टार्टिंग विद आवर एग्रीकल्चर सेक्टर कि एग्रीकल्चर में 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एनरोल्ड थी, मतलब दे वर अंडर दिस सेक्टर. तो it's important that we study this sector thoroughly and separately. सो जो प्री ब्रिटिश पीरियड था वहां पे जो इंडियन इकोनॉमी कंडीशन थी दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी एट ऑल. जो इंडियन इकोनॉमी थी दैट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, इट वाज ओवरवेलमिंगली रूरल एंड एग्रीकल्चर. सो जो 85% ऑफ द पॉपुलेशन था दे वर मोस्टली लिविंग इन विलेजेस, एंड उनका जो लाइवलीहुड था दैट वाज फ्रॉम ऑब्वियसली एग्रीकल्चर. तो इस रीजन की वजह से even with large proportion of population engaged in agriculture, मतलब इतने सारे लोग हमारे agriculture में ही थे, but there was they were not still self sufficiency नहीं आ रही थी क्योंकि प्रॉपर मटेरियल ही नहीं था. सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था हमारे पास क्योंकि सारा तो बाहर जा रहा था. तो हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन पा रहे थे इवन तो हमारी इकोनॉमी की 85% पॉपुलेशन एंगेज थी एग्रीकल्चर में. हमारी इकोनॉमी सॉरी हमारा एग्रीकल्चर उस टाइम पे स्टैग्नेंट हो गया था, मतलब रुक सा गया था. नाउ स्टैग्नेशन के मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. नाउ ब्रिटिश आए, उन्होंने देखा कि ओके इंडिया में इतना सारा लैंड है, एवरीबडी इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर. तो व्हाट देयर मोटिव वाज कि अब उनको कहीं से तो रेवेन्यू चाहिए. उन्होंने क्या किया, देखा कि अच्छा लैंड है, उसमें काम कर रहे हैं लोग, तो लेट्स टैक्स देम, लेट्स पुट अ टैक्स. एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की. सो व्हाट दे डिड कि इन्होंने टैक्स किया, और अब क्या होगा कि जो भी तुम क्रॉप ग्रो करोगे, सम परसेंट ऑफ इट या सम फिक्स्ड अमाउंट या कुछ भी यू हैव टू गिव एज अ रेवेन्यू की, एज अ टैक्स की, ये देना ही पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को.
तो एक बहुत फेमस सिस्टम है अंडर दिस विच इज नोन एज द जमींदारी सिस्टम। अब ये हिस्ट्री में तो पढ़ा ही है बट इकोनॉमिक्स में भी इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। सो इसके अंदर क्या था कि जो प्रॉफिट था एग्रीकल्चर का, उसको हम बोलते थे, मतलब जो भी प्रॉफिट हो रहा था एग्रीकल्चर से वो ले जाता था जमींदार। और जमींदार उसको बोल के ले जाता था कि ये है तुम्हारा लगान, मतलब टैक्स, ये देना ही पड़ेगा। जो जमींदार था उसका मेन इंटरेस्ट था सिर्फ कलेक्ट करना टैक्स, सिर्फ लगान कलेक्ट करना। ही डिड नॉट केयर कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उस कल्टीवेटर की। उसको नहीं फर्क पड़ता कि उस जो फार्मर है उसके लैंड में कोई क्रॉप नहीं आया है, पूरा ड्रॉट था या हेवी रेनफॉल की वजह से उसका क्रॉप खराब हो गया, ही डज नॉट केयर। उसका ओनली मोटिव वाज टू कलेक्ट लगान, बस। तो दैट इज बहुत ज्यादा मेस्ड अप, क्योंकि इनका कंडीशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा था। जमींदार वाज लाइक कि ठीक है मैं अपना लगान कलेक्ट करके दे दूंगा। एंड जो भी डेट्स थे कि कब डिपॉजिट करना है लगान टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे वर फिक्स्ड कि गवर्नमेंट को किस टाइम पे लगान जाएगा। एंड जमींदार अगर नहीं देता था लगान, तो ही वुड लूज हिज, ही वुड दे वुड लूज देयर राइट्स। तो उनको भी अपना तो कुछ मतलब उनको अपना देखना था कि वो किसी तरीके से फंसे ना। सो व्हाट दे डिड वाज कि सिंपली वो गए, टैक्स कलेक्ट किया, मतलब लगान कलेक्ट किया, एंड दे गेव इट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन अ फिक्स्ड डेट। बस यही काम था उनका। एंड जो जमींदार थे और जो गवर्नमेंट भी थी, दोनों ने, किसी ने भी वो फार्मर की कंडीशन के लिए कोई कंसर्न नहीं शो किया। दे वर ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग देयर ओन प्रॉफिट्स, बिकॉज ऑफ विच बहुत ही खराब सिचुएशन हो गई थी एग्रीकल्चर की उस टाइम पे। नाउ सेकंड वी हैव इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ना किसी भी चीज को कमर्शियलाइज करना मतलब उसको मनी से रिलेट करना, उसको एक मार्केट से रिलेट करना। सो कमर्शलाइजेशन मतलब कि हमारी जो भी क्रॉप्स आ रहे थे, व्हाट वी डू इज कि उनको हम सेल करें इन द मार्केट, एंड उससे जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे पास आएगा, rather देन जस्ट कंज्यूमिंग इट आवरसेल्फ। अब हम कंज्यूम नहीं कर रहे थे, हम खुद के लिए ग्रो नहीं कर रहे थे, अब हम मार्केट के लिए ग्रो कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज। Commercialization of agriculture means production of crops for sale in market rather than for self consumption। तो जो ब्रिटिश रूल के टाइम था उधर, तो जो फार्मर्स थे वो सारे हाई प्राइस कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है। सो लाइक कॉटन है, जूट है, ये सब प्रोड्यूस कर रहे थे वो। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का मोटिव तो था ये सब लेके जाना है हमें वापस ब्रिटेन। सो इन सब रीजन की वजह से भी, हमें था कि मार्केट के लिए प्रोड्यूस करें, फिर भी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही फार्मर की। क्यों? क्योंकि अब वो फूड ही नहीं है उनके पास। पहले देवर लाइक कि ठीक है हमारे पास फूड है, हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वी कंज्यूम दैट, एंड किसी को खाने की कमी नहीं होती थी। बट नाउ सिंस देयर लैंड वो तो एक ही है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग यूटिलाइज्ड इन फूड, नाउ इट्स गोइंग टू कैश क्रॉप्स, जो जूट एंड कॉटन है। तो उसमें अगर प्रोडक्शन हो रही है तो फूड का तो नहीं होगा, तो उनके पास अब तो खाना भी नहीं है। और जो उनको प्राइस मिल रहा है, दैट इज नॉट इनफ कि उससे वो नहीं खरीद सकते। एंड खरीदेंगे भी किससे जब प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा क्रॉप? तो किससे ही खरीद सकते हैं वो? तो ब्रिटिश ने क्या किया था कि एक शिफ्ट क्रिएट कर दिया था। शिफ्ट फ्रॉम व्हाट? क्रॉप्स, फ्रॉम फूड टू कैश। अब हम फूड
की जगह कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके. नाउ थर्ड वी हैव इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मतलब हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो कम था. अब वो क्यों कम होगा? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी था. हमारे पास उस टाइम पे एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं. एंड इरिगेशन भी नहीं था. लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज. मोस्टली फार्मर्स डिपेंडेंट रहते थे मॉनसून पे कि कब बारिश होगी तब हमारी क्रॉप्स होंगी. एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा था. सो उस वजह से भी देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी. नाउ वी सी जब प्रोडक्टिविटी ही कम है तो जो कल्टीवेटर है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपना सिचुएशन इम्प्रूव करे. ना उसके पास कोई इंसेंटिव है ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है कि कोई उसको सपोर्ट कर रहा है या कुछ कुछ भी नहीं है उसके पास. तो ही इज नॉट इम्प्रूविंग. ठीक है. No, Zamindar had no roots in the village, while British rule spent little on agriculture. तो कोई एजुकेशन ही नहीं था. मतलब वो किसी को एजुकेट नहीं कर रहे कि ऐसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी होता है, ऐसे बेस्ट तरीका होता है या वो. तो बेसिकली भी सी कि जमींदार को कोई मतलब नहीं था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही थी. तो एनीवेज इट कंट्रीब्यूटेड टू लो प्रोडक्टिविटी. सो ये जो सिचुएशन था, जब तक आप एजुकेशन नहीं दोगे ऑन हाउ टू यूज एडवांस टेक्नोलॉजी तब तक कैसे ही कोई इम्प्रूव करे. एंड दैट वाज मिसिंग. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट वाज डिफिकल्ट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एक्चुअली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. उसको आना भी इनफैक्ट द सिस्टम में इट वाज वेरी डिफिकल्ट. तो उस सारी रीजन की वजह से द प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड वेरी लो. नाउ फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट फॉर एग्रीकल्चर इज scarcity of investment. As we have seen कि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही थी एग्रीकल्चर के लिए. एंड जमींदार को कोई मतलब नहीं था. उनका काम वाज ओनली टू कलेक्ट द लगान. सो जो इंडिया का एग्रीकल्चर था इट वाज फेसिंग अ स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. किस किस में? टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज. इन सब चीजों में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था. एंड ये सब यूज होता है टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, टू मेक थिंग्स बेटर. बट इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं था. इवन दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स की फूड क्रॉप से कैश क्रॉप, फूड क्रॉप से वो कैश क्रॉप पे आ गए. एंड जो लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स और शेयर क्रॉपर्स, उनके पास कोई रिसोर्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी. ना कोई इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट क्यों इन्वेस्ट करे जब उनको जाके बाद में ब्रिटिश को ही देना है. तो वो कोई सेंस ही नहीं बना रहा था उनके लिए कि हम क्यों इन्वेस्ट करें. ऑल्सो आई मेंशन्ड वन थिंग, शेयर क्रॉपर. तो शेयर क्रॉपर कौन होते हैं कि एक आप लैंड ओनर होता है. तो ये लैंड है उसका. अब उसके पास इतना बड़ा लैंड है एंड ही इज वेरी रिच. तो he will not work on this land. He'll hire somebody. He'll hire a tenant कि आओ एंड मेरे क्रॉप पे, मेरे लैंड पे क्रॉप ग्रो करो. एंड जो भी क्रॉप आता है उसका सम शेयर वो मुझे दे दो एंड बदले में यू गेट द लैंड. नाउ दिस टेनेंट जिसके पास कोई लैंड नहीं है अपना, ही इज लाइक ओके, आई विल वर्क ऑन योर लैंड एंड गिव यू सम शेयर फ्रॉम माय क्रॉप. सो बोथ आर बेनिफिटेड. लैंड ओनर के पास somebody दे ही नीडेड somebody टू वर्क ऑन हिज लैंड. एंड जो टेनेंट था उसको चाहिए था कोई लैंड. तो दोनों को दोनों की चीजें मिल गई. सो दिस वाज नेशन ऑफ शेयर क्रॉपिंग. With this, we wrap up our agriculture sector. Will summarize the main reasons for stagnation. First was land settlement system. Second was second was commercialization of agriculture. Third was low level of productivity.
and fourth was scarcity of investment. सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स अपने एग्जाम में लिख के आ जाओगे इन योर क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम में so you'll get full marks for at least this section. Now, since we have covered agriculture in detail, I'll be covering industrial sector and the coming topics in the next class. So if Now, you thank like you the for watching. content, If you please like this subscribe video, then and do you'll give a get a thumbs lot up, on this comment, channel. and follow this So channel so thank I can you. come up with more such content.